Good morning, good afternoon, good evening to everyone. After the successful completion of accountancy and economics, now we are here with the business studies video. Now on 28th of March you have an exam of business studies. I know after 18th of March आप लोग किसी ने पढ़ाई नहीं किया होगा because of the celebration, because of other reason कि 10 days का gap है, ये सारी चीज़ें हैं. तो अब एक्चुअल में आज मंडे है, मंडे ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, बट हमें चीज़ों को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑन सैटरडे यू हैव एग्जाम. सो एग्जाम को अभी भी है 5 days एंड वी विल डू द रिविजन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 5 दिन में पढ़कर यू विल कंप्लीट योर BST सिलेबस. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. we'll discuss the important thing and I'll tell you in the next 4 days कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ पढ़ने से आपके मार्क्स आएंगे. एज वी ऑल नो, BST syllabus has been divided into 2 parts, part A and part B. So we'll start from part B today, and part B, as we all know, there are 4 chapters. Chapter 9, Financial Management, Chapter 10, Financial Market, Chapter 11, Marketing Management, and Chapter 12, Consumer Protection. Out of these 4 chapters, Chapter 9 and Chapter 10 are very, very, very important. These 2 chapters consist of 15 marks in your annual examination in your paper. Now, as you all know, CBSE is more focused on the concept based question or the case studies based question, not the direct question. So we will prepare accordingly. First of all, to solve the case based question, it is very important to know more about the concept. If you know the concept, you can easily solve the case studies. In today's class, we'll start with the financial market, the most important chapter and the most technical chapter ever. हर कॉमर्स बच्चे को ये वाला सब्जेक्ट, ये चैप्टर स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव. फाइनेंशियल मार्केट, टुडे विल डू चैप्टर 10, टुमारो विल डू चैप्टर 9 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, बिजनेस स्टडीज में भी न्यूमेरिकल है. सही सुना आप लोगों ने, चैप्टर 9 में भी न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल पे भी वी विल गिव फोकस एंड श्योर शॉट 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल विल डेफिनेटली कम. और इस रिविजन क्लासेस में वी विल कवर द न्यूमेरिकल एज वेल, नॉट टुडे बट इन नेक्स्ट 4 days. कोई भी एक दिन में विल डू द न्यूमेरिकल एज वेल. एंड इन एवरी रिविजन क्लास विल टेल यू द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, CBSE का क्या क्या फेवरेट टॉपिक है. सेकेंड, most important questions of the given chapters, and will revise the important and the most complicated or technical chapter of business studies. Not all the 12 chapter but the important basic one, जिससे कि आप लोग पास कर जाओ. Passing marks is 27 out of 80. You need to score 27. Fine. बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया. So we'll proceed with the thing. Chapter 10, I'll request you, all of you, kindly be ready with your textbook. Either you have Sandeep Garg or you have NCERT or you have Poonam Gandhi, whatever book you have, be ready with that book and one pencil, because I'll share my screen with my own PDF, with my own manual notes, but along with that I'll tell you कि आपके बुक में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ आप मार्क कर सकते हो. उसको आप मार्क करोगे और उसको देन एंड देयर ही कंप्लीट करेंगे. फाइन. At the end of the chapter, at the end of this video, after completing the chapter, we'll discuss the case studies question as well. Fine. So without wasting the time, let's proceed. Now, so name of the chapter is financial market, and this chapter belongs to part B, chapter 10. पार्ट बी चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट. CBSE के बिजनेस स्टडीज में तो यू हैव ओनली 1 चैप्टर, बट CBSE के एक करिकुलम में एक सब्जेक्ट है आपका FMM बोलकर, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट. तो उसमें तो वो लोग बच्चे 11-12 में प्रॉपर 60 मार्क्स का पूरा थियोरेटिकल पेपर पढ़ रहे हैं. ओके, इग्नोर. लेट्स स्टार्ट. फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट को समझने के पहले थोड़ा सा बैक जाएंगे और थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, बिकॉज अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आई सजेस्ट कि आई अज्यूम की चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी. तो लेट्स स्टार्ट. फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ कंपनीज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर? देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. 2013 के अकॉर्डिंग वी हैव 3 type of companies: public company, private company and OPC. Just a second. Now,
As you can see, company, how many types of companies are there? Joint stock company में we have 3 companies, public company, private company and one person company. So we'll not discuss about the private company and one person company, we'll discuss about the public company. Now what is public company? एक ऐसी company, it comes under the private sector. पब्लिक कंपनी जो अपना पैसा मार्केट से रेस करती है, जनरल पब्लिक से रेस करती है शेयर्स के बदले में. All the public companies issue shares in the market and get fund to manage their company's fund. अपने कंपनी को चलाने के लिए मार्केट से पैसा उठाती है, पब्लिक से पैसा उठाती है और मार्केट अपना कंपनी को चलाती है. इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है, जैसे अगर फर्म होंगे, फर्म और हाउस होल्ड, जो हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, हाउस होल्ड, हम इनको देते हैं. फर्म और हाउस होल्ड का क्या कनेक्शन है? हाउस होल्ड विल गिव मनी और वी कैन से कैपिटल टू द फर्म. हाउस होल्ड क्या देंगे? कैपिटल और फर्म देते हैं और फर्म उसी को यूज करके हमें क्या देते हैं? डिविडेंड. दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है. हमारे पास है पैसा और कंपनी के पास है आइडिया. उनके पास है बिजनेस आइडिया, हमारे पास है पैसा. हम अपना पैसा उनको देते हैं और उसी पैसा को यूज करके वो हमें रिटर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. There are so many types of shares: equity shares, preference shares, debenture is also a type of security, bonds are there. So I hope in class 11 chapter 7 of business studies, source of business finance में you people have read the concept of all these things: owners fund, borrowed fund, medium term loan, long term loan, short term loan, all these things. आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ इसमें कंपनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कंपनीज को पैसा चाहिए. किससे चाहिए? हमसे चाहिए. और इसके बदले में क्या देती है कंपनी? हमें अपने कंपनी का हिस्सा देती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शेयर. कंपनी विल इशू शेयर टू द जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ ओनरशिप एंड इन एक्सचेंज दे विल गिव द प्रॉफिट. फाइन, ये तो हो गया पब्लिक कंपनी का बात. फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? जैसा कि हमने अभी सुना, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट ऑफ, बिकॉज हर एक चीज का, हर एक सामान का अपना अपना मार्केट होता है. कॉमोडिटी मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है, आपका अलग अलग चीज का अलग अलग मार्केट होता है. इफ यू वांट टू बाय अ शूज, ऑब्वियसली यू विल गो टू श्री लेदर और बाटा और टू एनी अदर कंपनी, बट हर एक चीज का अपना अपना मार्केट होता है. वैसे ही फाइनेंशियल एसेट्स, आपका नेट वर्थ का भी अपना अपना चीजें होती है. तो अब मार्केट एक ऐसा जगह जहां पे यू कैन क्रिएट और एक्सचेंज योर फाइनेंशियल एसेट. सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? अब मार्केट एक ऐसा जगह जो कि क्रिएट करता है, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. आपके एसेट्स को बनाने में, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर, नेटवर्थ, बॉन्ड्स, आपका इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में हेल्प करता है. तो एक ऐसा मार्केट जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है. एक्सचेंज, अगर आपके पास शेयर्स है, डिबेंचर्स है, उसको एक्सचेंज करवाता है, तो जहां पे ये सब चीज ट्रेड कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं. क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? द फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस ऑफ for the creation and exchange of financial assets. क्या क्या होता है? What is the example of financial assets? The example of financial assets are shares, debenture, bonds. I hope I don't need to explain the meaning of all these things. Shares, debentures क्या होते हैं? All these are considered. अगर आपको एक word में explain किया जाए तो what is a one word for all these three terms? Securities. क्या बोलेंगे उसको? Securities. Fine. तो सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स. और वो फंड से क्या करती है कंपनी? वो सारे फंड से कंपनी चलाती है. शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट करती है या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को फुलफिल करती है या शॉर्ट टर्म फाइनेंस को फुलफिल करती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है. तो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर इट डिपेंड्स फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. Fine. Next, what are the functions of financial market? क्या काम करती है फाइनेंशियल मार्केट? का काम क्या है? What is the function मतलब काम. क्या काम करती है फाइनेंशियल मार्केट? सबसे पहला, सी देयर आर 4 functions. उस 4 functions में एक सेकेंड, उस 4 functions में I have marked the keyword mobilize saving and channelize them into the major segments. mobilize saving मतलब
हमारे पास है सेविंग, हमसे अलग अलग लोगों से इकट्ठा करके उसको प्रॉपर प्रोडक्टिव एरिया में चैनलाइज करती है, क्योंकि कंपनीज के पास होते हैं आइडियाज, उनके पास है रीजन, वेज, तरीके, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से पैसा बनेगा, कहाँ से नहीं, ये सब कंपनीज के पास है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास है पैसा, यही पैसा वो हम उनको देते हैं, मोबिलाइज सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू major segment or the profitable segment, and this is one of the most important functions of financial market. Facilitate price discovery. What is the meaning of price discovery? Because of the financial market, किसी भी शेयर्स का प्राइस क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब डिपेंड करता है ऑन द फाइनेंशियल मार्केट। आज मार्केट ऑल टाइम लो है बिकॉज ऑफ द वॉर। बिकॉज ऑफ द वॉर लोगों का इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है ऑन द मार्केट, वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट ऑल टाइम लो है, शेयर्स का प्राइस रेड हुए जा रहा है, एवरीथिंग इज इन रेड। तो द थिंग इज कि इस चीज को और कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए, प्राइस डिस्कवरी, क्या प्राइस होगा, हाई होगा, लो होगा, ये सब डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट, प्रोवाइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब जो चीज इजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में। You have land and building, you have plant and machinery, you have extra tools, extra machine. क्या वो तुरंत आपके पैसे में कन्वर्ट हो सकती है? No. If you have a land, if you want to quickly convert it into cash, you cannot it because these are fixed assets. वो आपका लिक्विड पोजीशन पे नहीं है, भले ही आपके पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है, बट आपका वो लिक्विड स्टेट में नहीं है। But financial market give you the liquidity of your financial assets. अगर आपके पास शेयर्स है, अगर आपके पास बॉन्ड्स है, अगर आपके पास डिबेंचर्स है, you can easily convert it into cash. आप उसको 2 दिन के अंदर में उसको कैश में कन्वर्ट करके पैसा विड्रॉ करके आप अपना काम कर सकते हो। तो that define provide liquidity to the financial assets. Next, reduce the cost of transaction. Reduce the cost of transaction का मतलब खर्चा, क्योंकि we are doing all this trading, all this dealing with the help of the platform. Suppose if I'll tell you the example, online payment के लिए if we do the online payment, we use Google Pay, Phone Pay, Paytm, all these platform. Similarly, if we need to buy and sell of shares or debentures, we need online platform, and the online platforms are Grow are there, Zerodha are there, Paytm Money are there. So all these are the थिंग। तो पेटीएम मनी, ज़ेरोधा, ग्रो से इन सब के थ्रू वी कैन डू द ट्रांजैक्शन। और कंपनी, ये जो जितने भी कंपनीज है, ये अपना ट्रांजैक्शन चार्ज करती है, जिसका होता है 0.02% और 0.03%। सपोज अगर इफ आई कंसीडर 0.03%, फाइन, 0.03, अगर आपने 5000 इन्वेस्ट किया है और उसमें आप 0.03% दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग एज, जस्ट अ सेकेंड, $0.5000 into percent. That is, if you will invest 5,000 rupees and the transaction fees is 0.03, that means you are giving only rupees 1.5. ₹1.5 you are giving as a transaction fees, as a platform fees. और ये ₹1.5 वो 1 लोगों से नहीं, 1 लाख लोगों से लेते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस कि वो अपना पैसा बना ले रहे हैं, हमें लगता है कि अरे नहीं ₹1.5, वो ₹1.5 इज अ लॉट। तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि हमें खर्चा भी कम आता है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सबसे पहला, मोबिलाइज सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव सेगमेंट, प्राइस डिस्कवरी, liquidity, reduce the cost of transaction, and you need to explain this 4 point in at least 2 to 3 lines. सिर्फ नाम लिखने से you will not get the point. बहुत स्टूडेंट का आदत होता है, हैबिट होता है कि बस पॉइंट्स लिख देंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेजीनेस नहीं, अगर आपको एक्चुअल में पास होना है, यू नीड टू राइट, आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा एवरीथिंग। तो मोबिलाइज सेविंग, चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव सेगमेंट्स, facilitate price discovery, provide liquidity, and reduce the cost of transaction. If you want to copy, you can. Next we have, or you have this topic in your book as well. So kindly open your book, you will go to the topic, you will get the same point. Types of financial market. Types of financial market, we have 2 types of financial market, as you can see, money market and capital market. Money market and capital market. Money market meant for the short term.
if a company need finance for a short period of time, they will get it from the money market. And if a company needs finance for the long period of time, company get it from the capital market. तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो तरीके का मार्केट होता है. मनी मार्केट में पैसा होता है अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए या कुछ रिटर्न चाहिए तो यू विल इन्वेस्ट इन मनी मार्केट. एंड कैपिटल मार्केट में अगर इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई चाहिए तो कंपनी आप इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स अप टू 1 ईयर एंड कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म दैट इज मोर देन 1 ईयर. एंड very important question, difference between these two, difference between money market and capital market is very important. तो market as important बुक में होगा तो बुक में उसको मार्क करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट we have instruments of money market. Instruments means if we want to invest in money market तो कौन कौन सा चीज है जिसमें कौन कौन सा सिक्योरिटीज है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो these are the name. Now the things has been deleted from the CBSE syllabus. पहले यू हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग. इसके ऊपर केस बेस्ड चला था, इसके ऊपर एवरीथिंग इज वॉज कमिंग. बट अभी बिकॉज ऑफ द डिलीशन इन द सिलेबस तो आपका ये चीज रिड्यूस हो गया. ओनली यू नीड टू रिमेंबर द नेम. व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर द नेम. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट, तो क्या क्या चीजें अवेलेबल है. 5 ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल. दीज आर द 5 नेम्स जिसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट करोगे एंड यू विल गेट योर मनी विद इन 1 ईयर. 6 महीना, 7 महीना, 365 डेज, किसी का 200 डेज. तो इस तरीके से चीजें होती है. किसी का 90 डेज होता है, डिपेंड करता है. तो ओनली नेम फॉर द MCQ पर्पज. नाउ अच्छा, ओपन योर बुक. इन द बुक यू विल गेट द टॉपिक ऑफ मनी मार्केट, डेफिनेशन, मार्केट. डेफिनेशन क्या क्या मनी मार्केट से पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ेंगे. एंड द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट. फीचर्स ऑफ मनी मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट. तो मार्क करेंगे बुक में, मार्क करके पढ़ लेंगे. वही चीज है सेम. लिक्विडिटी, सिक्योर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी, हाईली लेस रिस्की, ये सब पॉइंट्स आपको मिलेगा वहां पर. क्योंकि कम टाइम के लिए तो रिस्क का कोई चांसेस होता ही नहीं है. कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. मनी मार्केट तो पढ़ लिए. नाउ कैपिटल मार्केट. नाउ कैपिटल मार्केट आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. नाउ I'll ask you one question before this. Suppose if I'll take the name of 3 to 4 companies. Paytm, Nykaa, Lenskart, suppose 3. ठीक है. ये तीनों कंपनीज में क्या सिमिलैरिटीज है, ये तीनों कंपनीज में क्या सिमिलैरिटीज है. ये तीनों कंपनी प्राइवेट कंपनीज हुआ करती थी बट अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था प्राइवेट, बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन, इन्होंने अपना बिजनेस प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर किया. पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि आपने अपना फंड अरेंज करने का जो तरीका है वो आप पब्लिक पे छोड़ दिया. नाउ दैट मीन्स दे विल इशू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक एंड गेट फंड फ्रॉम देम. फाइन. अब इन तीनों में द थिंग इज कि ये सारे चीज, अगर ये सारे कंपनी जब अपना फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू किए होंगे, इफ अ कंपनी वांट्स टू इशू शेयर्स इन द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, अगर पहली बार इन्वेस्ट करेंगे किसी भी मार्केट में तो वो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे. प्राइमरी मार्केट. और वही शेयर्स अब जैसे पेटीएम, नाइका, लेंसकार्ट तो पिछले साल ही रिलीज हुआ था. लेंसकार्ट अगर अब नया कोई भी शेयर्स इशू करना चाहता है या कुछ भी करेगा तो वो किस में करेगा, सेकेंडरी मार्केट में. बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्टेड होकर अगर वो शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, दे विल इशू थ्रू प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम. एक ही बार सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मार्केट में इशू हो रहे हैं. तो अगर उनको अपना कंपनी का फर्स्ट शेयर्स इशू करना है और जनरल पब्लिक से पैसा लेना है, दे विल इशू इन द प्राइमरी मार्केट थ्रू सो मेनी वेज वी विल रीड.
एंड सेकेंडरी मार्केट, जो मार्केट में अगर आप कोई भी ऐप ओपन करो, ग्रो, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी, और वहाँ पे सर्च करो, सर्च करके वहाँ पे आप देखो कि हाँ ये ऐप, ये शेयर्स चाहिए, ये शेयर्स चाहिए, अगर आप उसमें सर्च करोगे तो यू विल गेट सो मेनी कंपनी का शेयर्स। तो वो सब किस में ट्रेड कर रहे हैं? वो सब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। एम आई क्लियर? तो अगर कंपनी फर्स्ट टाइम कोई शेयर्स इशू कर रही है, वो कहाँ करेगी? प्राइमरी मार्केट। अगर वो दूसरी बार कर रही है, एग्जिस्टिंग शेयर्स कोई ट्रेड, खरीदना बेचना कर रही है, सेकेंडरी मार्केट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द केस बेस्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू। फिर मत बोलना कि मैम ने बताया नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, सो एज यू कैन सी, secondary market securities are sold for the second time refers to the purchase and sale of securities। जो second time होंगे उसको बोलेंगे secondary market, और primary market को तो हम लोग first time के लिए बोलेंगे। secondary market is also known as stock market or we can say stock exchange। am I clear? तो if you want to copy you can कॉपी करने, अगर आप रनिंग नोट्स बना सकते हो फटाफट वाला, तो यू कैन डू। दीज आर द नोट्स हेल्पफुल फॉर द लास्ट मिनट रिविजन, बिकॉज अंदर में तो एक्सप्लेनेशन, हम कॉमर्स वालों का एक पावरफुल वेपन होता है। लिख तो हम कुछ भी देंगे, पॉइंट्स बता दो भाई, हम लिख तो कुछ भी देंगे। मैं भी ऐसी करती थी, फ्रेंड से पॉइंट्स बता दो, लिख तो, अंदर तो एक्सप्लेनेशन करने का हम लोग का तो महारत हासिल है। तो वी कैन राइट एनीथिंग एंड एनी टॉपिक, यूपीएससी क्लियर कर ले हम लोग। ओके, नेक्स्ट, मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। मेथड ऑफ फ्लोटेशन मतलब अगर प्राइमरी मार्केट में कंपनी अगर फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही है तो किस किस तरीके से जाएगी। इसमें अगेन थिंग्स वर देयर बट चीजें डिलीट हो चुकी है, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। आई डोंट नो वाई, फॉर व्हाट रीजन, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे ओनली नेम पढ़ेंगे, बट मैं हूं। आई विल एक्सप्लेन इन 2 to 3 लाइन्स, फटाफट इसको एक्सप्लेन करेंगे। फाइन, नाउ मेथड ऑफ फ्लोटेशन, इसको बोल सकते हैं वेज, क्या क्या तरीका है मार्केट में शेयर्स को इशू करने का फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज ऑल दिस रेफर्स टू दी प्राइमरी मार्केट। सबसे पहला, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टर्स। एज यू कैन सी, फर्स्ट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोस्पेक्टर्स? क्लास 11 में आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द कंपनी। 3 डॉक्यूमेंट्स होते थे, एमओए, एओए एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो बताता था आपका स्कोप, आपका लिमिटेशन, कि आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आपका रूल्स एंड रेगुलेशन बताया जाता था, रिमेंबर अगर याद होगा तो। एंड प्रोस्पेक्टस, ऑल द इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड, आर प्लेस एट वन प्लेस, उसको प्रोस्पेक्टस बोलते थे, जहां पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन होता है। स्कूल डायरी और स्कूल एल्मनक इज द एग्जांपल ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी को अपने बारे में कुछ भी बताना है इन्वेस्टर्स को, वो कौन से टाइप का शेयर्स लेकर आ रही है, कौन सा शेयर्स इशू कर रही है, ये सब अगर बताना है तो दे कैन एक्सप्लेन थ्रू प्रोस्पेक्टस। किसी भी कोई भी कंपनी शेयर्स को इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी के बारे में, कि किस टाइप का शेयर्स है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या रिटर्न है, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ऑल द ऑब्लिगेशंस, ऑल द थिंग रिटन इन द प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, दे कैन। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर फॉर सेल, ये पहले होता था नॉर्मली, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, हमारा कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप वहां पे जाओ, वहां पे जाकर अगर आपको शेयर्स खरीदना है फिजिकल फॉर्म में, आप खरीद सकते थे। बट नाउ दिस हैज बीन रिमूव्ड, अब तो आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट, private individual, if a company do not want to issue shares in the market and they get fund from the private individual, big companies, तो वो वहां पे डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट। राइट इशू, दिस इज इंपॉर्टेंट। राइट इशू मीन्स इफ अ कंपनी, सपोज इफ अ कंपनी ऑलरेडी कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट है, लिस्टिंग है, लिस्टेड है, सब कुछ है, कंपनी एक नया टाइप का शेयर्स लेकर आ रही है, सबसे पहले इट्स अ रूल that company will ask their existing shareholder कि they want to buy these shares or not. First of all, company will ask from the existing shareholder कि उनको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अगर वो हाँ कर देंगे, उनको शेयर्स देना पड़ेगा। अगर वो ना कर देंगे, then they can issue shares, then company can issue shares to the general public.
right issue define every company must ask from the existing shareholder with the new type of securities. अगर कंपनी नया टाइप का कोई भी सिक्योरिटीज लेकर आ रही है, कंपनीज को बोलना पड़ेगा राइट इशू. एंड द लास्ट EIPO, इलेक्ट्रॉनिक IPO. What is the full form of IPO? Initial public offering. Initial public offering. Fine. इलेक्ट्रॉनिक IPO, EIPO जो कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि अगर किसी भी कंपनीज को अपना शेयर्स इशू करना है तो वो डिजिटली अपना ऑनलाइन शेयर्स इशू कर देते हैं. एप्लीकेशन हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ा हमने, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वो जो चीज़ आजकल होता ही नहीं है. इन्वेस्टर्स को सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे ही देना पड़ता है. तो EIPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर अपना शेयर्स इशू कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको EIPO बोलते हैं. फाइन. इसमें से इंपॉर्टेंट है सिर्फ दो, राइट इशू एंड EIPO. बुक में आपके होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नॉर्मली 1-2 लाइन का डेफिनेशन पढ़ के भी हो सकता, कोई बड़ा बात नहीं है. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं. शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि बना ही है, एन इंस्टीट्यूशन विच दैट इज इनकॉर्पोरेटेड for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities. क्या मतलब है मैम इसका? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बना ही है असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, रेगुलेट चलाने के लिए, कंट्रोल मैनेज करने के लिए द बिजनेस ऑफ, किस चीज का बिजनेस? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटीज. इससे इजी और नहीं हो सकता है. An institution that is incorporated for the purpose of assisting, an institution that is incorporated for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying and selling of dealing in securities. इससे easy और क्या होगा? फाइन. 2 बार रीड करोगे मेरे साथ, हो जाएगा. वापस, an institution that is incorporated for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying and selling of dealing in securities. Simple. Stock exchange फंक्शन क्या काम करता है? वही फाइनेंशियल मार्केट जो करता है वही काम करता है. थोड़ा घुमा के बोलेंगे. देखो, सबसे पहला प्रोवाइड लिक्विडिटी, अच्छी बात है. प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, प्राइस डिस्कवरी हमने पढ़ा था, अच्छी बात है. सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, रिड्यूस पढ़ा था, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे सेफ्टी आ जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 तो चलो कॉमन है. इसमें कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, एज वी नो आज मार्केट में अगर कुछ भी हो, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए या सेंसेक्स फॉल कर जाए या निफ्टी बढ़ जाए, तो इसका पूरा एक अच्छा खासा ट्रेंड बन जाता है. कुछ भी होगा तो मार्केट में ट्रेंड बन जाएगा. 140 करोड़ की जनता में सिर्फ 3% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. एंड दिस 3% इज 4.2 CR. 4.2, 4 करोड़ 20 लाख पॉपुलेशन ओनली इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट. और ये 4 करोड़ लोग इतना पावर रखते हैं कि कंट्री के इकोनॉमी को हिला सके विद द इन्वेस्टमेंट पर्पस. अगर मार्केट ऑल टाइम लो है क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं. यही मार्केट आज 6 महीना में या 1 साल में चीजें बढ़ेंगी, और वो ऐसा बढ़ेंगी जिसका कोई हाथ पांव नहीं होगा. एंड प्रोवाइडिंग द स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है प्रिडिक्शन. इसमें इजीली प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं. इसीलिए अगर कुछ भी होता है, मीम आप लोग देखते होंगे, अगर कुछ भी होगा, वॉर हो जाए या ट्रम्प ने कुछ बोल दिया या कुछ हो जाए, तो सबसे पहले हम इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि कल मार्केट का क्या सिचुएशन होगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेक्यूलेशन लगाना, प्रेडिक्शन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इजी भी है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं. फाइन. तो क्या क्या फंक्शंस हमने पढ़ा अभी? फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में ऑब्वियसली यू नीड टू एक्सप्लेन. सबसे पहला, प्रोवाइड लिक्विडिटी, प्राइस डिस्कवरी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइड फॉर स्पेक्यूलेशन. हो गया. नेक्स्ट, steps in the trading and settlement procedure. One request to all of you who is watching the video. आज अगर फाइनेंशियल मार्केट मैं कंप्लीट कर रही हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट
एट द एंड ऑफ दिस क्लास काइंडली कंप्लीट द लर्निंग वर्क ऑफ दिस चैप्टर. अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे बाबा. इसको कंप्लीट करने के बाद विल शेयर द केस स्टडीज एज वेल. तो विल काइंडली सॉल्व द केस स्टडीज so that you will get the confidence कि नहीं, you can do it. Clear? Now, so the settlement steps in the trading and settlement procedure. Before starting this topic, सबसे पहले तो आप अपना बुक ओपन करेंगे और बुक ओपन करके पहले ये टॉपिक खोजेंगे कि टॉपिक है कहाँ पर. फाइन. ये टॉपिक खोजने के बाद एज यू नो अगर हम लोग स्टेप्स पढ़ रहे हैं, देयर आर 10 पॉइंट्स. अगर हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं तो स्टेप्स को पूरा सिंक्रोनाइज वे में लिखना है. दैट मीन्स 1 को 3 में लिख सकते हैं और 3 को 1 में नहीं लिख सकते. दिस इज इम्पॉर्टेंट. सबसे पहला, अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर. अच्छा, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू आस्क एक छोटा सा क्वेश्चन कि सपोज इफ आई मेक एन ऑर्डर और प्लेस एन ऑर्डर ऑन Amazon. ठीक है, Amazon पे अगर हमको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो हम क्या करेंगे. मैंने अपने स्टूडेंट से जो पूछा था ऑफलाइन क्लास में, व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माय स्टूडेंट, तो उन्होंने बोला, सबसे पहले एक स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने बोला फर्स्ट कि मैम पहले आइटम को सर्च करेंगे. पहले ही आइटम को सर्च करेंगे. वाह, मतलब बिना कुछ किए द फर्स्ट स्टेप इज टू हैव अ स्मार्टफोन, एंड्रॉयड वाला फोन और वॉट एवर इंटरनेट वाला फोन जिसमें आपका इंटरनेट चलो, स्मार्टफोन होना चाहिए, टच स्क्रीन एंड ऑल. उसके बाद get an app, install the app, and then you need to log in with your credential, and then you will proceed with the searching the item. This is a procedure. और उसने क्या बोला, सबसे पहले ही सर्च कर लिया उसने. तो सबसे पहला ऐप डाउनलोड करेंगे, पहले फ़ोन होना चाहिए, फिर ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर क्रेडेंशियल डालेंगे, नेम, एड्रेस और ये सब डालने के बाद जब ऐप आ जाएगा होम पेज पर, देन यू विल गो टू द सर्च सेक्शन एंड देन वहाँ पर सर्च करेंगे. आइटम जो पसंद आएगा उसको प्लेस ऑर्डर करेंगे. प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, शिपमेंट एड्रेस पूछा जाएगा, पेमेंट मेथड पूछा जाएगा. वहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करके पे करके आप उसको प्लेस कर देंगे और वो ऑब्वियसली 3 to 4 days में आपके घर तक आ जाएगा. दिस इज अ होल प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग और ऑन Amazon. The same way we'll do the thing on share market. If we want to buy a shares, we need to follow certain procedure. And what are those procedure? Let's proceed. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले we need to approach a registered broker. Now what is the meaning of registered broker? अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो ऑब्वियसली यू विल गो ईदर टू गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऑल दीज एप्स. बट यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बहुत सारा ऐप है. ग्रो, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी, देयर आर सो मेनी एप्स जो कि रजिस्टर करते हैं, मतलब ये रजिस्टर्ड ब्रोकर है. तो रजिस्टर्ड ब्रोकर सबसे पहले आपको ऐप चूज करना कि कौन से ऐप से आप शेयर मार्केट करना चाहते हो. नेक्स्ट, you need to open a demat account. Now what is the meaning of demat? demat का मतलब होता है digital form of shares. digital form of shares. digital form of shares का मतलब shares का digital form. एक word होता है rematerialization, और एक word होता है dematerialization. एक word होता है dematerialization. Now what is the meaning of dematerialization? सबसे पहला rematerialization. Rematerialization is physical form of shares. When we convert the online shares to the physical shares, that is called rematerialization. और dematerialization when we convert the physical shares to the digital form. फिजिकल है उसको डिजिटल में करे तो डीमैट, डीमैट से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करे तो उसको बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन. द फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स इज रीमटेरियलाइजेशन एंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ शेयर्स इज डीमटेरियलाइजेशन. फाइन. नेक्स्ट वी हैव तो ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट. तो सपोज आपने ग्रो को चूज किया, ग्रो में आपने डीमैट अकाउंट बनाया शेयर्स खरीदने के लिए. तो मैं एक बात बता दूं, जितने भी एप्स होते हैं गूगल पे, फोन पे, वहां पे यू कैन रजिस्टर विथ वन बैंक एप्लीकेशन. बट इन केस ऑफ शेयर मार्केट अगर आप ग्रो कर रहे हो तो ग्रो का डीमैट अकाउंट अलग, आपका पेटीएम मनी का डीमैट अकाउंट अलग, आपका ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट अलग, अलग अलग बैंक का अलग अलग एप्स का अलग अलग डीमैट अकाउंट होगा. नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है प्लेस एन ऑर्डर. ऑर्डर प्लेस करेंगे. मैच द शेयर प्राइस विद द बेस्ट प्राइस अवेलेबल. ऑब्वियसली मार्केट है, मार्केट में तो हम सर्च करेंगे ही. कहाँ से करेंगे, देयर आर 2 डिपॉजिटरीज.
there are two depositories, BSE and NSE. What is the meaning of depositories? जहाँ पे शेयर्स एक्चुअल में स्टॉक होते हैं. जितने भी कंपनीज है ये दो चीज़ों में अपना लिस्टेड करवा के रखती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. दीज आर द टू डिपॉजिटरीज जिसमें सारे कंपनीज का शेयर्स अवेलेबल होता है. यू कैन मैच योर प्राइस, शेयर्स प्राइस विद दिस टू ऐप, और फिर आप डिसाइड करो कि आपको किससे खरीदना है. जहाँ पे कम होगा ऑब्वियसली हम लोग वहां से खरीदेंगे. ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप आपको मिलता है. बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपको एक कंफर्मेशन स्लिप लगेगी कि नहीं, यू आर डूइंग, इतना आप खरीद रहे हो, इतना, ये इतना पेमेंट करना, ये सब. इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. हु विल इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट? ब्रोकर. ब्रोकर मतलब जो भी ऐप है वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है. उसमें लिखा होता है क्या? डिटेल्स, कितना शेयर्स, कितना प्राइस, कौन सा डेट, कितना क्वांटिटी, प्लस आपका कितना जीएसटी, कितना ट्रांजैक्शनल फीस, आपका उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा होगा. तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रोकर एंड द इन्वेस्टर. ठीक है. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करने के बाद क्या होगा? डिलीवर द शेयर्स. शेयर्स डिलीवर होगा. पेमेंट फॉर द सिक्योरिटीज, आपको पेमेंट करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स, आपको पेमेंट करना होता है. पे आउट डे, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे आउट डे? पे आउट डे का मतलब आफ्टर द पेमेंट जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स को डिलीवर करते हैं. डिलीवर करेंगे, किसको डिलीवर करेंगे? डिलीवर करेंगे टू द ब्रोकर. तो जब स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को शेयर्स डिलीवर करते हैं उसको बोलते हैं पे आउट डे. और उसके बाद ब्रोकर हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स डिलीवर करते हैं जिसको बोलते हैं डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन द डीमैट अकाउंट. समझ में आ रहा है? डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन द डीमैट फॉर्म ये करते हैं ब्रोकर, और पे आउट डे में स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज डिलीवर करते हैं किसको? ब्रोकर को. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पर्पस. नोट्स बनाना होगा तो नोट्स बना लेंगे और बुक से इसको पढ़ के रखेंगे. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. केस बेस्ड आएगा ही आएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा. लिखा हुआ है तो इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते. नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेबी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेबी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नाउ कंपनी तो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत पहले से थी, बट आप लोगों ने एक सीरीज देखा होगा, हर्षद मेहता स्कैम. सुना होगा हर्षद मेहता स्कैम, जो कि हुआ था 1992 में. अगर आज हर्षद मेहता स्कैम, आज अगर हर्षद मेहता जिंदा होते तो अंबानी इतना, मतलब लाइक अंबानी को हम लोग रिचेस्ट पर्सन में जानते हैं, अंबानी रिचेस्ट पर्सन नहीं होते, वो उस टाइम के रिचेस्ट पर्सन थे. तो आज उनका नेटवर्थ, आज उनका इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे होता वो हम लोग अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज अ थिंग. तो सेबी क्या है? सेबी है एक सेटअप इन द ईयर 1988. बंद तो गया था बहुत पहले ही. टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, चलाने के लिए, सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट को चलाने के लिए ये बंद तो गया था. एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, बट it became a statutory body having perpetual succession and a common seal under the Securities Exchange Board of India Act in 1992 after scam 1992 के बाद गवर्नमेंट ने इनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर इनको राइट दिया, स्पेशल राइट दिया कि आप एक्ट बनाओगे और आप सारा का सारा चीज रेगुलेट करोगे, सारा का सारा चीज मॉनिटर करोगे. एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड बाय यू ओनली. जो भी करना है वो आपको करना है. तो सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट विद द कंपनी, सेबी इज वेरी प्रोटेक्टिव विद द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर को कुछ भी दिक्कत हो वो एक बार सेबी को जाके मेल कर दे, अगर उसका रिप्लाई नहीं आया विद इन 24 आवर्स नाम चेंज कर लेना. तो सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट कंपनीज को लेकर, सब कुछ को लेकर. कंपनी इज वेरी स्ट्रिक्ट, सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट. सीधा आपका लाइसेंस छीन लेगी या कंपनी को सस्पेंड कर देगी, ब्रोकर को सस्पेंड कर देगी. तो सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट. फाइन, डेट इज इंपॉर्टेंट. And the last topic of this chapter is, and the very 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 important chapter, जितना important लिखना है आप उसमें important लिख सकते हो. कितना है? Functions of SEBI,
तीन फंक्शंस है, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। दिस इज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और सीबीक्यू में भी आ सकता है। सीबीक्यू मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन में भी आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आएगा। नाउ क्या देगा मैम सीबीएसई में? अगर आपको देना है पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ में बोलेगा विच फंक्शंस हैव बीन डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ, आइडेंटिफाई द लाइन जिसमें वो चीज पता चल रहा है, मतलब लाइन अंडरलाइन करके आप बताओ कि इसमें रेगुलेटरी फंक्शन है कि प्रोटेक्टिव फंक्शन है कि डेवलपमेंट फंक्शन है, आपको वो बताना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो रेगुलेटरी फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटरी? चलाना, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन, मिडिलमैन, इंटरमीडियरीज का क्या रूल्स रेगुलेशन होगा, ब्रोकर्स लोग कितना चार्ज करेंगे कितना नहीं, ब्रोकर्स का रूल्स रेगुलेशन, ब्रोकर्स का एजेंसी, ब्रोकर का जितना भी इंटरमीडियरीज का रजिस्ट्रेशन उसका रेगुलेशन, आपका म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन उसका रेगुलेशन, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है सब कुछ सेबी डिसाइड करती है। और कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, एवरीथिंग इज डन बाय द कम्स अंडर रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट अगर फंक्शन का बात किया जाए, डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब और कैसे आगे बढ़ावा दे सके, मोटिवेट कर सके, एंड इट एप्लीकेबल्स ऑन बोथ, कंपनीज पे भी एप्लीकेबल करता है और इन्वेस्टर्स पे भी करता है, तो दोनों को सिखाता है। ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज जो मिडिल मैन होते हैं, जो ब्रोकर है, तो जो एजेंट होते हैं उनको ट्रेन करते हैं। इंटरनेट ट्रेडिंग, ऑनलाइन कैसे ट्रेडिंग किया जाए। अंडरराइटिंग ऑप्शनल, मार्केट ऑफ आईपीओज, कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिश इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा रिसर्च पेपर, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इशू करते रहते हैं जिससे दोनों को फायदा हो। एंड द लास्ट वन इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सीबीएसई के लिए उनके इन्वेस्टर्स जान है। इन्वेस्टर्स है तो इससे भी मतलब शेयर मार्केट चल रहा है, अगर इन्वेस्टर्स ही नहीं होंगे तो शेयर मार्केट नहीं चलेगा और इकोनॉमी बहुत पीछे चला जाएगा। तो प्रेडिक्टिव फंक्शन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है चेक करते रहना कि प्राइस अचानक से बढ़े नहीं, अचानक से कम नहीं हो। तो प्राइस रिगिंग, जो अचानक से चेंज होता है प्राइस में बढ़ जाना या घट जाना, तो उसको बोलेंगे, उस चीज में चेक करते हैं अंडर प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर का इंफॉर्मेशन, अगर कोई पर्सन टाटा कंपनी में या बिरला कंपनी में कोई है, उसको कंपनी का परफॉर्मेंस पता चल रहा है, वो बाहर जाकर अपने दोस्तों को जाके नहीं बोल सकता है। और अगर ये करके अगर उसने अब पैसा बनाया, किसी का बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द इनसाइडर पीपल, इनसाइड पीपल, तो वो एक केस क्रिएट करेगा, इसको बोलेगा इनसाइडर ट्रेडिंग। एजुकेट इन्वेस्टर्स एंड चेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। डेवलपमेंट एप्लीकेबल्स टू बोथ एंड रेगुलेटरी फंक्शन एप्लीकेबल्स ऑन द इंटरमीडियरीज, कंपनीज, ये सब पर होता है, कैसे क्या होगा कैसे नहीं, ये सब। नाउ ओपन योर बुक, गो टू द लास्ट टॉपिक। उसमें मैंने तो यहाँ पे 3-3, 4-4 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको वहां पे पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स पढ़ना। अगर खाली डायरेक्ट क्वेश्चन आया स्टेट द फंक्शंस ऑफ सेबी, जो कि आने का बात नहीं है, अगर स्टेट द फंक्शंस ऑफ सेबी आ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन में, यू विल राइट ऑल द 3 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट्स ऑफ ईच, 2 पॉइंट्स ऑफ रेगुलेटरी, 2 पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड 2 पॉइंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव। बट इन केस के अगर आपको आइडेंटिफाई करने बोलते कि नहीं इसमें बताओ कौन सा बोला गया है, डेवलपमेंट बोला गया है तो डेवलपमेंट एक्सप्लेन करो, प्रोटेक्टिव बोला गया तो प्रोटेक्टिव एक्सप्लेन करो, रेगुलेटरी बोला गया तो रेगुलेटरी एक्सप्लेन करो, तो जो चीज बोला जाएगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। एम आई क्लियर? तो इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन ये है हमारा चैप्टर कंप्लीशन। नाउ विल शेयर द केस बेस्ड क्वेश्चन, बट बिफोर दैट यू नीड टू कंप्लीट द रीडिंग फ्रॉम द बुक एंड यू विल लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, क्या समझ में नहीं आया है, काइंडली कमेंट एंड देन लेट मी नो कि क्या चीजें आपको समझ में आया, क्या चीजें नहीं समझ में आया। नाउ विल मूव अहेड टू द केस बेस्ड क्वेश्चन। काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन एंड डू सॉल्व। Now this is the first part, question number 4, question number 5, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड देन विल प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 डन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट लेंगे, सॉल्व करेंगे। Now the next MCQ, question number 4, question number 5, question number 6, स्क्रीनशॉट लेंगे। 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, क्लियर?
Next, stock exchange. Next question, this. Kindly take the screenshot. Next, this. Take the screenshot. So these are the few questions which I have sorted out from the. There are so many questions. तो इसमें से मैंने कुछ sort किया है कि ये these are important when you will practice. Or at the end of Sandeep Garg book or Poonam Gandhi book, you will get so many questions of MCQs or the case-based question. Kindly do solve, and if there is any doubt, you can ask me. So chapter 10 complete. Tomorrow we'll proceed with financial management. Bye.